हे गाइस, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी सॉल्यूशन सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 9th। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th चैप्टर 1 सप्लीमेंट्री द लॉस्ट चाइल्ड की रीडिंग पार्ट। सबसे पहले हम स्टोरी अबाउट द स्टोरी देख लेते हैं। जो कि हम स्टोरी में पढ़ने लगे हैं उसका कुछ हम थोड़ा सा वे जो है वो अब हम इस पैराग्राफ में पढ़ लेंगे। एक बच्चा जो था, अ चाइल्ड goes to a fair with his parents। एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है। He is happy and excited। वो बहुत ही खुश था। And wants the sweets and toys। और उसको स्वीट्स और टॉयस जो वहाँ पे लगी हुई की डिस्प्ले की गई थी वो उसे चाहिए थी। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। बट उसके पेरेंट्स जो होते हैं वो उसे वह चीज़ नहीं लेके देते हैं। Why then does he refuse when someone else offers them to him? तो तब उसने क्यों रिफ्यूज़ किया, मना क्यों किया जब कोई उसे लेके दे रहा था। ठीक है, कोई स्ट्रेंज पर्सन उसे लेके दे रहा था, तब उसने रिफ्यूज़ क्यों किया। तो चलो लेट्स मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। सो बच्चों, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ये फेस्टिवल जो था वो स्प्रिंग का था। From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily glad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. कुछ horses चलते थे, कुछ others sat चलती थी, being carried in bamboo में कैरेट करते थे, bullock carts चलते थे। वहाँ पे एक little boy भागता है, रन करता है बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड laughter. You can see over in the picture. Come, child, come, call his parents. उसके पेरेंट्स क्या कहते हैं? कम बेटा कम, चाइल्ड कम, मतलब बच्चे यहाँ पे आ जाए। As he legged behind, जब जैसे वो पीछे देखता है, फेसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप, तो वो एक आकर्षित, उसका ध्यान जो होता है वो आकर्षित हो जाता है शॉप्स में जो टॉय लगे होते थे। दे लाइन द वे। ही हरिड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडिएंट टू देयर कॉल, हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द receding toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. I want that toy, he pleaded. उसने कहा कि ये मुझे टॉय चाहिए। ठीक है, वो बच्चा कहता है। His father looked at him red eyes। उसके फादर जो होते हैं वो उसे रेड आइज के थ्रू देखते हैं। Okay, like this. In his familiar Terence way, his mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" कहती है, बच्चा आपके पीछे क्या है? It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even hand. A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. The child followed them in the air with his gaze, till one of them would still its wings and rest, and he would not try to catch it. वह उसे पकड़ नहीं पा सकता था, नहीं पकड़ पाया, okay? But it would got fluttering, flopping up into the air. When he had almost caught it in his hands, जब उसने उस बटरफ्लाई, उस ड्रैगन फ्लाई को ऑलमोस्ट अपने कॉट ही कर लिया था, देन हिज मदर गेव अ कॉन्टेंट्री कॉल। तो उसकी मदर ने एक कॉन्टेंट्री कॉल मतलब उसे बुलाया। कम चाइल्ड कम, कम टू द फुटपाथ। बच्चा यहाँ पे आ जाइए, चलो फुटपाथ के ऊपर चलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स के साथ भागता भागता, बच्चा होता है ना, उछलता है ना, भागता भागता छोटा सा बच्चा। तो gaily and walked abreast of them for a while. Wing, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. Come, child, come, his parents called from the shade of a grove where they had seated
themselves on the edge of a well. He ran towards them. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. "Come, child, come," they called to the child, who had now gone running in wild capers from the banyan tree, and gathering him up they looked the narrow वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स। तो अब उसके पेरेंट्स फिर बुला लेते हैं उसके, और अब जो होता है वो बनैन ट्री जो होता है वहाँ पे जाके वो बैठते हैं, ठीक है। As he neared the village, the child could see many other footpaths full of trunks. जैसे ही वो एक विलेज के पास पहुँचे तो चाइल्ड ने क्या देखा, कुछ और फुटपाथ्स देखे full of trunks के converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. A sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, बर्फ़ी, जलेबी। एक जो स्वीट मीट सेलर था उसने क्या बोला, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। At the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets, decorated with leaves of silver and gold. तो वो डेकोरेटेड किया गया था सिल्वर से एंड गोल्ड लीफ से। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइज एंड हिज माउथ वाटर्ड। चाइल्ड ने आइज जो अपनी स्ट्रेट कर ली और अपना माउथ जो है उसका वाटर से फॉर द बर्फ़ी के लिए वाटर, उसके मुंह में वाटर आने लगा, मतलब पानी आने लगा फॉर द बर्फ़ी। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, क्योंकि बर्फ़ी जो थी वो उसकी फेवरेट स्वीट थी, ठीक है। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, वो कहता है मुझे ये बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली murmured, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. ठीक है, तो उसे पता था कि उसे पेरेंट्स उसे नहीं लेके देंगे, इसलिए वो कोई आंसर आने से पहले ही मूव्ड ऑन हो गया। नेक्स्ट ही सॉ अ फ्लावर सेलर हॉक्ड। तब उसने एक फ्लावर सेलर को एक बोलते हॉक्ड मतलब चिल्लाता होता है ना, मतलब ऐसे जोर जोर से आवाज़ें लगानी। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड सीम्ड irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. क्योंकि वो ये कह सकते थे कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है ना। So without waiting for an answer, he moved on. A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. एक मैन जो था उसने अपने हाथ में एक स्टिक हाथ में, मतलब वहाँ पे एक बैलून जो थे येलो, ग्रीन, पर्पल, अलग अलग कलर्स के बैलून जो थे उसके पास थे। द चाइल्ड वाज सिंपली carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys, कि ये बहुत पुराना ज़माना हो गया इनके साथ खेलने का। So he walked on farther, ठीक है। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. वहाँ पे एक स्नेक चार्मर जो था वो फ्लूट के साथ स्नेक को, मतलब अगर स्नेक जो होता है, स्नेक चार्मर जो होता है, अगर फ्लूट बजाता है तो स्नेक जो है वो मतलब होता है ना कि फ्लूट बजाए या बांसुरी वगैरह, मतलब बांसुरी फ्लूट ही होती है बच्चा, वो वीन वगैरह बजाए तो वो ऐसे नाचता वगैरह है ना स्नेक। तो इट्स हेड रेस्ड इन अ ग्रेसफुल विंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान व्हाइल म्यूजिक स्टोल इनटू अ इनविजिबल ईयर लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर। तो वहाँ से भी वो चले जाता है क्योंकि बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played. तो उसके पेरेंट्स ने उसे मना किया था कि जैसे ये स्नेक चार्मर प्लेड या कुछ और में, मतलब ऐसे फॉरबिडन कोई कोर्स म्यूज़िक जो है वो नहीं सुनना है। ही प्रोसेस्ड फादर, तो वह आगे चलता है। देयर वॉज अ राउंड बॉट इन फुल स्विंग
Man, woman, and children carried away in a whirling motion shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on the round pond. Please, father, mother. तो चाइल्ड ने अपना एक इंटेंटली वो एक बोल्ड हो चुका और उसका मन था कि मैं वहाँ पे जाऊँ. राउंड बॉट में एक फुल स्विंग था, एक राउंड बॉट. तो आई वॉन्ट टू गो ऑन दी राउंड बॉट प्लीज़ फादर एंड मदर. तो मुझे राउंड बॉट में जाना है, अपने माता पिता को कहता है. ठीक है. देयर वॉज नो रिप्लाई. वहाँ से उनके माता पिता से कोई रिप्लाई नहीं आता. ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, दे वर नॉट देयर. जैसे ही वो अपने पेरेंट्स को देखने जाता है, देखता है पीछे मुड़ के, वो वहाँ पे नहीं होते थे अहेड ऑफ हिम. ही टर्न टू लुक ऑन अदर साइड, दे वर नॉट देयर. वो कोई दूसरी साइड में भी देखने की कोशिश करता है तो वहाँ पे भी उसके पेरेंट्स नहीं होते. ही लुक बिहाइंड, वो पीछे देखते हैं. देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, कोई भी साइन नहीं होता है. अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट and with a sudden jerk of his body he ran from where he stood crying in a real fear. तो वो बहुत ज़्यादा रोता है. कहता है mother father. Tears rolled down from his eyes. उसकी आई से टीयर्स जो होते हैं वो निकल रहे होते हैं. hot and furious his flushed face was confused with fear. वो थोड़ा सा डरा भी होता है. panic stricken he ran to one side first then to the other, hither and thither in all directions, knowing not where to go. Father, mother, he wailed. His jello turban came untied and his clothes became muddy. उसकी जो जेलो टर्बन थी वो अनटेड हो गई थी और उसके जो कपड़े जो थे वो मडी हो गए थे. Having run to and fro in a range of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. At little distances on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. He tried to look intently among the patches of bright yellow cloths, but there was no sign of his father and mother among these peoples, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. He ran quickly. वो जल्दी से भाग गया वहाँ से. This time to shrine to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with man, but he ran through people's legs. His little sob lingering. Mother, father. Near the entrance to the chapel, however, the crowd became very thick. Men jostled each other. Happy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their spiritual moments. तो वो फटाफट क्या होता है, वो रैन हो जाता है एक मंदिर में. वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्राउड होता है. वहाँ पे लोग धक्का मुक्का कर रहे थे. तो जो बच्चा जो होता है वो गिर जाता है. उसकी किसी मैन या वुमेन ने लेग मारी होती है तो वो गिर जाता है. ठीक है. मैन इन द स्ट्रगलिंग क्राउड हियर हिज क्राई. तो जो स्ट्रगलिंग क्राउड था उसमें एक मैन ने उस बच्चे की आवाज़ सुनी एंड स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स. उसने अपने बाजू में बच्चे को ले लिया. हाउ डिड यू गेट देयर. वो पूछता है हाउ डिड यू गेट देयर चाइल्ड. तुम यहाँ पे कैसे आए. हुज बेबी आर यू. तुम किसके बेबी हो. द मैन आस्क्ड एज ही स्ट्रीट क्लियर ऑफ द मेस. द चाइल्ड वेप्ट more literally than ever. तो बच्चा जो होता है वो और ज़्यादा रोता है and only cried. I want my mother. और वो कहते हैं मुझे सिर्फ अपने mother, I want my mother and I want my father. मुझे mother चाहिए और father चाहिए. The man tried to soothe him by taking him to the round pond. Will you have a ride on the horse? वो round pond में उसको लेके जाता है और वो कहता है क्या आप इस पर राइड करोगे इस हॉर्स पे. He gently asked as he approached the ring. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother. I want my father. तो वो उसे नहीं माता. कहता मुझे सिर्फ अपनी मदर चाहिए और अपने फादर चाहिए, अपने माता पिता चाहिए. ठीक है. The man headed towards the place where the snake charmer. तब वो अब उसको snake charmer के पास लेके जाता है. Still played on the flute on the seventh cobra. Listen to that nice music child, he played it. But the child shut his ears with his fingers and shouted his double pitched strain.
I want my mother, I want my father. The man took him near the balloons. वो कहता है मुझे सिर्फ अपनी मम्मा और अपने पिता चाहिए. मैन जो होता है उसको बैलून वाले के पास रहता है. थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चिल्ड्रंस अटेंशन एंड क्वाइंट. वो कहते हैं कि मे बी इनके जो ब्राइट कलर्स है उससे चिल्ड्रन की अटेंशन और कंटेंट जो है वो थोड़ा सा बदल जाए, वो रोना थोड़ा सा बंद कर जाए. वुड यू लाइक अ रेनबो कलर बैलून. वो कहता है तुम्हें क्या रेनबो कलर बैलून चाहिए. ही प्रीवियसली आस्क्ड, जैसे वो पहले बोलता था वैसे ही उसने पूछा. The child turned his eyes from the flying balloons and yes sobbed. I want my mother, I want my father. वो अपनी आईज स्टॉप कर लेता और सोप्ट कर देता और वो कहता मुझे अपने मदर और फादर चाहिए. द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी. मैन ने बहुत कोशिश की बच्चे को खुश रखने के लिए. बोर हिम टू द गेट विद द फ्लावर सेलर सेड लुक कैन यू स्मेल दोस नाइस फ्लावर्स चाइल्ड. वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक. The child turned his nose away from the basket and retreated his sob. Child ने अपना nose turn कर लिया उस basket से and उसने कहा I want my mother, I want my father. Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. But sweets, would you like child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed I want my father and I want my mother. तो उसको वह स्वीट वाली शॉप के पास लेके जाता है बट वो बच्चा जो होता है वो अपना फेस वहाँ से टर्न कर लेता है और इतना ही कहता है कि मुझे अपने मम्मा और पिता चाहिए. तो बच्चा ये जो स्टोरी है द लॉस्ट चाइल्ड इज़ रिटन बाय मुल्क राज आनंद. ये मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई है. ये हमारी इस स्टोरी के राइटर है. तो बच्चा ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट. बाकी समरी पार्ट, मॉरल ऑफ द स्टोरी, थीम ऑफ द स्टोरी वो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस पूरी रिटर्न वे में डिस्कस कर दूँगी. तो बच्चों थैंक्स फॉर टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ. मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना. थैंक यू सो मच बेटा.